Praveen. Yeah. So before I start, I would have a small way to introduce each other. And before we introduce, we will do a virtual sanitization. So everybody do like this, virtual sanitization. Yeah. So that we remember we have to keep sanitizing. Yeah. Great. Thank you. Thank you so much. Now, I would like everybody to introduce in a very different manner. So, uh, you have to use your first letter with a very positive word. So for example, I'll give you example Kishore. So K is for the kindness. So you have to introduce, say I am Sultana, S stands for one positive quality of yours. And also you have to share one of your most happy moment in the life, whether it was a personal or professional. So let us start with the whoever wants to go first. Yeah, let's start with Nidhi. Hi, good evening, sir. Thank you. I think I'm the first one to. Okay, so my name is Nidhi, and the first letter I would say end with. I never thought about it actually. End with nice. I'm always nice. I try to be nice with people. And one of the best moment of my life was happy moment of my life was when it was a Women's Day, and there was a lady who was working with me, and it just happened that we were returning from some work, and she said that madam, I feel so good that you have helped me be someone that I never thought of. I think that was it. It came totally as a surprise on a Woman's Day for from a woman to a woman, and it. I think this is one of the happiest thing that I had ever heard in my life. So uh, that's from my side. Wonderful, Nidhi, and you are nice and very good contribution you have done to that woman. Thank you for sharing. Thank you. Thank you. Yeah, let's move to Uday, Mr. Uday. Yes. Good evening, sir. Kishore. My name is Uday Kumar. Since it represents like a sun. Right. When you say about the sun, it has both. What is it? It's a powerful energy where every living creature requires sun. That's what the positive note I can say. Very recent thing is during lockdown, me and wife, the last month we rushed to purchase some vegetables, but coming back, the vehicle got exhausted with petrol. So that there is no other choice. We went to the petrol bank. Even petrol bank was closed. So we have to just out to my place. I don't know. Out of blue, 3 guys came in the bike with a petrol bottle, and they provided the petrol to my vehicle. I was surprised. I did not even ask help. These guys, they just watched us, just walking with the vehicle, and they just helped me. And it was, they just gave and went. It's no. I was just without any expectation, nothing. Sir, reach home early. Wonderful, wonderful. This is where they have shown the kindness on, and without even giving you chance to, make a obligation or anything. Yeah, like I asked, can I pay the Google Pay? Sir, nothing. You just reach your home safe. Yeah, wonderful. Thank you. Thank you for sharing, Uday Kumar. Thank you. Yeah. Yeah. Okay. And we go to Tanmay now. Very good evening, everybody. Yeah, my name Tanmay Bhaumik, and for me, I believe the quality of empathizing and empathy, sense of empathy, is what I feel is the good asset from my side. And happy moments, as you asked, I think every moment is special. Whether wife cooks a good food, that is also happy moment. And when the performance, we win a customer over, that's also a happy moment. So I believe every moment is equally cherished and enjoyable.
Wonderful. I can see Buddha behind you. So you look like a very content person. Thank you for sharing. Yeah. 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 Can we go to Birendra Balira Singh? Yeah. Yeah, good evening, everyone. I'm Birendra Balyar Singh, but in short, you can call me Biren. Okay. I'm from Odisha. Mostly I stay in Bhubaneswar, but right now because of lockdown and situation, I'm in Daringbadi, my native place. So this is known as the Kashmir of Odisha. Here we get little more cold and snow, something like that during this winter season. And many tourists flock here. So right now I'm here, and I belong to this Human Interest Media. My organization is Human Interest Media, and actually So, you so can told you me share? to yeah. I Yeah. just Can you told share for your the happy, from the letter yeah B? Any from the good let quality of yours and yeah from the your letter B, as it comes with Biren. So the B, I always take it as belief system or believing others, trusting others. So whenever I meet any stranger and all, I make from my part that I should uh, go and first mingle with them, so make others comfortable to the friendship zone and all, then interact. So that way I trust others, because my life is more of kind of transparent, and so I also feel that people should be also with that nature. So then in that way we will gel well, or the wavelength will meet, and that will make us into a collaborative working mode or something like that. And about the Wonderful. good feeling, of course you have told, but with your permission I will just tell you that just day before yesterday, this yes cyclone was all dominant in Odisha and all. And meanwhile my friend, my partner or aide, the executive director of my organization, he was battling for this COVID, and after 21 days of battling and all, he succumbed to death. So this 1-2 days I am actually in a really shock moment, because he was my help, and I used to look up to him when I am out of Odisha or something like that. He used to take care of everything, and suddenly he has uh, left us. So it's a sad moment. And if I recall my Our condolences on this loss. thank you. And if I recall my happy moment, then I would say that a decade back, I uh, I was working in All India Radio. The first time I entered there after my internship and all. So my dad used to listen to the radio and all, because he's of old person of that kind using radio. But after TV also, sometimes he used to use it. But it was not of that regular and all. But he was not aware of whether the batteries are there or not, like that. So suddenly when I told them that I am enrolled into this air and all, my bulletin will be on air. So then they were rushing in that evening and all to find out pair of batteries and loaded to the radio set. And when they heard my voice after finishing my bulletin, when I called them that how did you feel, because my father used to listen to other newscasters and all. So it was like his son coming over the radio and his voice is coming out. So he said, no, I felt happy that you were other side. Yeah. So that was my happiest moment. But it's already a decade. And another sad part is that last September 2nd, my father has passed away. So he's no more with us. Okay. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you for sharing. And Thank you, sir. Yeah. can we move quickly now? So I would just request to say the one word starting from the first letter and a happy moment, so that we move quickly into this introduction. May I request Praveen now? Good evening, sir. Yeah. Good evening. Good evening. You can say Kishore. No problem. Praveen Kumar Gupta. So actually, P for passionated. मतलब बहुत पैशन रहता है सर कि किसी काम में पीछे पड़ जाओ तो उसको खत्म करना एनी हाउ, उसमें क्या लॉस क्या प्रॉफिट कोई मायने नहीं रखता. सेकेंडली जब फर्स्ट टाइम जब हमने 12th पास करी, मतलब एक मोमेंट था कि लग नहीं रहा था कि 12th कर पाएंगे, बट बहुत मस्ती करते थे उसमें. 12th पास हुई तो एक ये मोमेंट कभी भूल नहीं पाते जब रिजल्ट एकदम से आया था कि यार तुम लोग पास हो. Wonderful. Thank you. Thank you for sharing. Thank you. Thanks. Right. Can we move to Ravish?
Yeah, hello. Hi, this is Ravish. Yeah. So first letter, it was little difficult to think about exactly with that. Yeah. But I think being righteous is one word I relate most to. I try to be on the right side of law, right side of work every time, whatever I work towards. Okay. So being righteous is what I can relate. Okay. Happy moment, I think from last 1 month, I have been trying to remain positive, and despite there are a lot of losses in close and far, and only when you start looking for positives in life, I found a lot of positives. So even yesterday it was raining, today there is sun outside. So I find joy in it, that today is sun is here, and we can dry our clothes. You. Mm. Yeah. So there Sure. is a joy in every moment we live with. So I have cultivated that Okay. mindset. Thanks. बेंगलोर ची मीटिंग आहे. Sure. Thank you. Thank you for sharing. Thank you. Thank you so much. Yeah. Can we request Maruti now? जी सर. Hmm. हाँ, बताइए. गुड इवनिंग सर. हेलो. Good evening. गुड इवनिंग. मैं मारुति बनसोड़े, So- परिवर्तन सामाजिक संस्था, नलदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, उस्मानाबाद इन महाराष्ट्र. Yeah. जी. So say one positive word from M and happy moment. जी सर. आपका happy moment life का. आनंदाचा क्षण. तो हम जो गरीब लोग Okay, sir. सपोर्ट कर रहे हैं, या अर्थक्वेक में किया था, अभी लॉकडाउन में भी हम लोगों को जो बहुत मुसीबत में लोग हैं उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं, वही हमारे लाइफ का एक हैप्पीनेस डे है. Okay. Thank you for sharing. जी सर. Yeah. And may I request Professor Dr. Shivalinga? Yes, sir. Good evening, sir. तो बस उनको बोलना. Can you hear, sir? Yeah, good evening. Yeah. I can hear. Yeah. Can you say one positive word from your name? Yeah. Okay. My name is Professor Dr. Shivlingaya Mallappa. I'm basically as a clinical psychologist and also running a Suvarna Karnataka Development Society since 1997, established in Tumkur district, Karnataka. Okay, so I was associated with a gap since Okay. last. Could you say years. about the happy Yeah. moment of your life? Yeah, I'll come to that. Come to that. Okay. Yeah. So my happy moment. So if I go and unfortunately get a PG seat to study for MSc psychology. So that is I was get very happy. So in the Bangalore University, they have announced the rural development department subject first list. Okay. So, but I have applied a psychology also. So in the after Okay, the very good. announcement of Great. rural development department Thank you for admission first Thank you list for name, sharing. then psychology department also they have announced. So in the way of two Thank you. options they have announced my Thank name. you for sharing. Thank you. One is Thank an you for NSS sharing. quota, We'll second move to one is next. a general Thank you. quota. So I have get Okay. a very afraid to select in the two way of my seat admission. So that is I remember to always. So if I got the Sure. NSS diploma certificate Yeah. during a degree, so they have Okay. selected in the NSS quota also, then the category quota also they are selected for admission of BG's psychology course. So it is my happy moment. Thank you, Kishore Dr. Kapoor. Thank you, Dr. Shivalinga. Thank you. Thank you.
So, so we will just move ahead, and I think everybody has noted down. We will go last with the Purnima, and we'll move to our workshop. Purnima, can you share? Purnima there? Hello. Santosh Kasle? Hello. Both of Yeah, them. Purnima. Hi, sir. Hello. Yeah, hello. Sir, namaskar. I am in Can you share your? Dharwad, sir. Hi, sir. No, can you share your happy Hello. moment in life? Hi, yes, sir. Yeah. Today is our marriage anniversary, sir. Oh, okay. Yes, sir. Okay. Sir, Congratulations. Congratulations. sir, sir, I am in working from Sri Swastik Women Youth and Rural Development Society. 16 years, sir. I am running my NGO. Hello. Yeah, yeah. Sir, you are. Hello. Yeah, I am Hello. able to hear. We are able to hear. We just want to know Hi, your sir. happy moment, which Hi, is your yes, sir. anniversary today. Yeah. Yes, sir. Sir, Okay, thank you. I want to some help, sir. Gap. I want help from. Oh, that you can discuss separately with Sultana. And Sir. Purnima, Please. Purnima ji, we can connect for that later after the session. Now we can move ahead with the session. Okay. Okay, madam. Thank you, Okay. everyone. Yeah, we could not. Hello. Thank you, everyone. We could not cover everyone. Yes, sir. Because we have to cover the module, some aspects, and so everyone so today, in this session, I would like everybody to, you have shared so much happy moment. Now I would like make you to space for new learning, which we are going to have 45 minutes. So we call it as a empty your cup. So unless this bottle, if you see this bottle, if this bottle is full, you cannot enter the new things. So that's why we have to make some space for the new things. That is what my request is. Make space for new learning, which we are going to have in these few minutes, session. So why are we here? We are here to become a happiness catalyst. As everybody say, somebody has lost his friend, somebody has lost so many relatives. So much is happening in the our world today, where fear is there. But as a owner of NGO, as a people who are running NGOs, our duty is to become a happiness catalyst so that we can spread the happiness and also give a positivity in the world. So we have to move from our limiting mindset to an empowering mindset. We have to embrace and overcome our fears. जो भी हमारे डर हैं, उन डर को हमें हटाना है, तभी हम दूसरों की सर्विस कर सकते हैं. यदि हम खुद fearful होंगे तो हम दूसरों की सर्विस नहीं कर सकते हैं. और उसके लिए हमें चाहिए, we have to manage our time and energy better. जो हमारा time and energy है, how do we use it for the productivity of our NGO and ourselves? And how to change our thought process positively so that we can give positivity to others. And while doing all this, we have to have a gratitude. Like, some gentlemen shared, somebody gave the petrol to them, they even didn't ask. So there is a sense of gratitude we all need to have, because we are all alive and we are not in the bad condition. With the God grace, we are able to serve. We are not in the hospital. So we should have a gratitude for this life and this every day we are getting. So today, the whole thing is how we be happy ourselves so that we can spread the happiness. And this is what, in India is not a very happy country. We are 140 in 156 countries. So bottom 16, we are happy. We are one of the unhappy nation in the world, which is not a good thing for all of us. That is why it is our responsibility to increase the happiness of the country also. So we are known as a very anxious country, despite having such a rich tradition from our mythology. Yeah. So this is the whole message. We can spread happiness in our environment and our organization and serve others only and only when we ourselves are happy. So we must fill ourselves first before giving happiness to others. तो आज हम सब अपने को इतना हैप्पी करेंगे, ऐसे टूल सीखेंगे ताकि we can spread the happiness to हिंदी everyone. का प्रयोग ज्यादा करें सर प्लीज.
हिंदी का यूज ज्यादा करें तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू फॉर फीडबैक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यदि हम खुश रहेंगे तो हम खुशी को आगे बांट सकते हैं। तो हमारा जो पर्पस ये होना है कि अपने को कैसे खुश रखें ताकि हम खुशी को आगे बांट सके। यदि हम खुद ही दुखी होंगे तो किसी को खुशी दे नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और हमारा काम तो एनजीओ का है, तो हमारा काम ही दूसरों की सर्विस है। तो जब दूसरों की सर्विस हमारा काम है तो हम दुखी होंगे तो कैसे देंगे? हम डरे होंगे तो कैसे हम दूसरों को डर हटाएंगे? यही पर्पस है, ठीक है ना? तो इसमें सबसे बड़ी चीज होती है जेंटलमैन एंड जेंटलवुमेन, सबसे बड़ी चीज होती है थॉट। इसको कहते हैं कि हमारे जो थॉट्स हैं उस थॉट से हमारी पॉजिटिविटी आती है। तो ये छोटी सी एक पोयम है, योर माइंड इज ए गार्डन, योर थॉट्स आर द सीड्स, यू कैन ग्रो फ्लावर्स और यू कैन ग्रो वीड्स। जो हमारा माइंड है ये एक गार्डन है, इसमें हम या तो पॉजिटिविटी के फ्लावर्स लगा सकते हैं या निगेटिविटी के खरपतवार लगा सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर है, हम क्या लगाना चाहते हैं। तो वी हैव टू, दिस थॉट्स आर इन आवर कंट्रोल। और आपको पता है दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं, 60,000 थॉट्स एक दिन में। और यदि हम उनको ढंग से मैनेज करें तो हम कुछ भी बन सकते हैं। और उन थॉट्स को मैनेज करके लोग क्या क्या बने मैं आपको दिखाता हूं। नेल्सन मंडेला, he has just managed his thoughts and he has handled the whole English community and for the black rights, and he became president and Nobel Prize winner just by managing the thoughts. उसने 27 years जेल में रहने के बाद भी अपने थॉट्स को नेगेटिव नहीं होने दिया। तो ये हम सब बन सकते हैं, हम सब नेल्सन मंडेला हैं और हम सब महात्मा गांधी भी बन सकते हैं। पॉलिटिकल छोड़ के बस इस आदमी ने नॉन वायलेंस को यूज करके हमें इंडिपेंडेंस कराया। तो वो भी एक थॉट आया था उसको, जब उसको एक बग्गी से नीचे फेंक दिया गया था साउथ अफ्रीका में, तो उसने कहा कि मुझे कुछ करना है। ऐसे ही आपका मदर टेरेसा, एक छोटे से थॉट से उसने अपनी पूरी जिंदगी कलकत्ता में और बाकी जगह दिखाई। और उसका एक स्टेटमेंट था कि मैं उनको जगह दे रही हूँ फॉर पीपुल हु लिव्ड लाइक एनिमल्स टू डाई लाइक एंजल्स। जो जानवरों की तरह मर रहे हैं उनको मैं एंजल की तरह जिंदगी देना चाहती हूँ। ये एक थॉट था। तो आप लोग तो सब एनजीओ सेक्टर से हैं, तो ये थॉट्स की पॉजिटिविटी बहुत जरूरी है एज ए ओनर, एज ए मैनेजर ऑफ द एनजीओ। और जब हम पॉजिटिव थॉट्स रखेंगे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो हैप्पीनेस का सबसे पहला इंग्रेडिएंट है अपने थॉट्स को मैनेज रखना और थॉट्स में निगेटिविटी नहीं आने देना, और ये हमारे कंट्रोल में है। माइंड आपको निगेटिविटी की तरफ ले जाएगा पर आपको वहीं रोक देना है उसको। प्लीज स्टॉप, आई विल बी ओनली पॉजिटिव। you are the owner of your mind is not owner of you। माइंड आपको नहीं चलाता है, आप माइंड को चलाते हैं। जिस दिन आप माइंड को कहेंगे मैं निगेटिव थॉट नहीं आने दूंगा, वो नहीं आएंगे। यही इन लोगों ने किया और यही काफी लोग अभी कर रहे हैं जो ऊपर पहुंच रहे हैं, और आप में से भी कई लोग कर रहे होंगे। और एक और जो अभी साइंटिफिक स्टडी हुई है, जो दीपक चोपड़ा का आपने नाम सुना होगा, उसने एक स्टडी करी है। उस स्टडी में दिस इज कम आउट कि जो हम सोचते हैं उसके बेसिस पे हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं सोचूं कि दिस एनजीओ वर्क इज वेरी टफ, आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग एंड आई एम वर्किंग सो हार्ड, तो आपकी बॉडी के सेल्स बोलेंगे लेट मी वेलकम द वायरस, मैं इम्यूनिटी कम कर लेती हूँ। क्योंकि आप यदि जब ऐसे विचार करेंगे तो आपकी बॉडी भी वैसी वायरस को लेके आ जाएगी। और आप देखेंगे कोरोना टाइम में भी जिनकी इम्यूनिटी कम है उनको ये जल्दी पकड़ रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि वो पहले से गिव अप कर देते हैं कि मेरे को हो जाएगा, तो फिर धीरे धीरे होने लगता है, क्योंकि बॉडी उसी आपके थॉट के हिसाब से चलती है। और यदि आप बोलेंगे नो आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, आई एम डूइंग ग्रेट वर्क इन एनजीओ, आई हैव सो मच लाइफ रिमेनिंग, आई विल डू 10,000 पीपल सर्विस मोर, देन आपकी बॉडी भी कहेगी आई एम रेडी, प्लीज यूज मी। दिस इज व्हाट हैपेंस। ये दीपक चोपड़ा ने बहुत बड़ी स्टडी करी है। तो जो हमारे थॉट्स होते हैं उसके हिसाब से हमारी बॉडी के सेल्स काम करते हैं। या तो सब क्लियर है इस पे? ये क्लियर है तो एक बार हाथ उठाएं। या किसी को डाउट तो नहीं है? वेरी गुड। तो हमें अपने थॉट्स को मैनेज करना है एज ए हैप्पीनेस कैटलिस्ट। थॉट्स को नेगेटिव नहीं होने देना है। अब नेक्स्ट चीज जो थॉट्स के बाद आती है वो आती है कि हमारे को एक लाइफ मिली है, उस लाइफ में हमें कुछ करना है, हमें एक पर्पस है। तो उसको हम कहते हैं व्हाट इज माय मीनिंग और पर्पस ऑफ लाइफ। आप लोगों ने अपना एनजीओ खोला है तो एक पर्पस के लिए खोला है।
तो उस पर्पस को हमें हमेशा ध्यान में रखना है। तो पर्पस क्या है? स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लिव लाइफ फॉर समथिंग हायर देन योरसेल्फ, अपने से ऊंची चीज के लिए अपने को जीना है, तो उसको हम कहते हैं पर्पस। और क्या होता है कि आपको हम करोड़ों रुपए दे दें पर तब भी खुशी नहीं आ सकती जब तक आपको लाइफ में वर्थवाइल पर्पस नहीं होगा। आप देखेंगे कई करोड़पति जो हैं वो काफी दुखी हैं। क्यों दुखी हैं? और कईयों ने सुसाइड कर लिया। आपके सामने केस है, कैफे कॉफी डे के हेड थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया करोड़ों रुपए होते हुए भी। सिद्धार्थ एक्टर थे, उन्होंने 15 करोड़ बैंक में होते हुए भी सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि उनको एक पर्पस नहीं दिखता, एक कि जिंदगी में पर्पस क्या है। तो हमारा पर्पस जो है और मीनिंग है उसका होना बहुत जरूरी है। तो ये जो सेकंड इंग्रेडिएंट है थॉट्स के बाद, वो है कि हमारा पर्पस क्या है, उस पर्पस के लिए हम कितना डेडिकेटेड हैं। इसको कोई मीनिंग कहते हैं, कोई पर्पस कहते हैं, जापान में इसको इकिगाई कहते हैं। तो इसलिए मैं अभी चाहूंगा कि आप लोग 2 मिनट सोचें कि आपका जो एनजीओ है या आपका जो वर्क है या आपकी पर्सनल लाइफ है, उसमें नेक्स्ट 1 ईयर में आप क्या अचीव करने वाले हैं, कितने लोगों की सर्विस करने वाले हैं, कितना पैसा कमाने वाले हैं, जो भी आपकी इच्छा है। एक गोल क्या है जो आप 1 साल में, जिसके लिए आप पैशनेटली काम कर रहे हैं, आप 2 मिनट सोच के चैट बॉक्स में लिखिए। चैट बॉक्स में लिखिए कि नेक्स्ट 1 ईयर में आप क्या अचीव करना चाहते हैं अपने एनजीओ के लिए या अपनी पर्सनल लाइफ के लिए। प्लीज एवरीबडी राइट। थोड़ा सोचिए यदि आपको टाइम लग रहा है, बट जिन का क्लैरिटी है वो लिख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमें एक क्लैरिटी मिलेगी कि अगले 1 साल में, आज हम बैठे हैं मई 2021 में, जून में ऑलमोस्ट। सो फ्रॉम जून टू नेक्स्ट जून, इन 1 ईयर व्हाट वी वांट टू अचीव, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। इट कैन बी पर्सनल गोल, इट कैन बी ऑफिशियल गोल। somebody wants to speak, he is also welcome, he or she is welcome. कोई बात बोलना चाहते हैं कि हमारा ये 1 साल का गोल है, that is also welcome, or you can put in chat box. Yeah, very good, Birendra. Writing a book on inspiring story and become an author. I look forward to have your book. Yeah, Purnima, next 1 year development my NGO to state level. Wonderful. Wants to further. Sultana, you also have to write. Yeah, I want to say something. Everybody. Yeah, please, Tanmay. We are a health tech company, and we have taken a responsibility to adopt the nutrition and health program for the rural girl child, for female child. So we are keep adopting villages and the lower strata of the society, mainly for the girl child, providing nutrition and health to them. So we would like to adopt at least 20 villages in the rural part of the country. Very good, Samir. So this number always helps. Like he has said 20 and Ravish has said 5,000. These numbers are very important. When you have a number, you will be running behind your goal. Yes. Very good. Maruti also shared, Ravish also, and Sultana also shared. Very good. Anybody else wants to speak about it? Very good motive, Tanmay. Really, congratulations. Very good motive. So this goal is very important because उससे क्या होता है कि हमें एक मिलता है कि हम मॉर्निंग में क्यों उठ रहे हैं, हमें क्यों अपने दिन को यूज करना है प्रॉपर्ली, तो उसके बारे में इम्पोर्टेंट है. So Sultana is want to prepare for civil service. All the best. Yeah. So this one goal, even if you are not able to decide now, I will request you, after this seminar, put it in writing in a very big paper, my goal or my NGO goal for next 1 year. Personal goal and professional goal both. So somebody who is overweight can work on reducing weight. Somebody who wants to meditate. So personal goal is also important. So Parveen has written 100 numbers of trees. So good. Very good. Purnima has written help me gap organization, my NGO support. Yeah. So
So all have a very good ambition and I am feeling so happy, you know, working with you people on this. 50 महिला सरपंच को प्रशिक्षण देंगे मारुति, वंडरफुल. This आप 50 महिला सरपंच को देंगे तो 50 गांव सशक्त हो जाएंगे एक्चुअली मारुति. 50 गांव सशक्त हो जाएंगे. That is the wonderful thing. Yeah, higher education, Professor Shivlingam, and national and university recognition. Wonderful. 1 year. So now our 1 year goal is very clear. And that 1 year goal आपको अपने ऑफिस में, आपके घर में एक मोटे कागज पे लगा देना है कि ये मेरा 1 year goal है, and you have to sign it as and take that this is our signature. If you have team members, ask your team members to also to pledge and sign for that goal, and then you will have a single direction, and that will give you happiness. Right? So in goal, what happens is very important element to achieve goal is the passion. जिन लोगों में वेदर नेल्सन मंडेला है, चाहे आपके मदर टेरेसा हैं, बिना पैशन के कोई आगे नहीं बढ़ सकता है. तो हमें अपने थॉट्स के साथ साथ अपने पैशन को बना के रखना है ताकि एवरी डे वी आर मूविंग टुवर्ड्स द गोल एंड हैप्पीनेस. तो पैशन किससे आता है? पैशन लोग कहते हैं कि अपने आप आ जाता है, पर पैशन आता है एक्शन से. जब आप एक दिन हार्ड वर्क करते हैं, उससे जो पैशन आता है वो किसी चीज से नहीं आ सकता. आप लोगों ने देखा होगा. और जब लोगों के चेहरे पे स्माइल आती है आपके काम से, उससे आपको पैशन आता है अगले दिन फिर काम करने का. तो पैशन फ्यूल्स एक्शन, एक्शन इज द की, एंड एक्शन इज इन आवर हैंड. सो हैप्पीनेस कम्स थ्रू पैशन एंड एक्शन, एंड दैट इज द फर्स्ट इंग्रेडिएंट. लेट मी रिपीट, वाज द थॉट. पॉजिटिव थॉट रखेंगे हम, अपना गोल क्लियर करेंगे, अपना लाइफ का मीनिंग क्लियर करेंगे, और उसके बाद हम उसमें पैशन लेके आएंगे ताकि हमारी और हमारी टीम पूरे दिल से काम करे. तो अब आपने जैसे गोल डिसाइड किया है, तो उस गोल के लिए आपको क्या करना है नेक्स्ट? उसके लिए लिखना है कि मैं 1 या 2 एक्शन ऐसे कौन से लूंगा अगले 1 साल में जिससे मेरा गोल अचीव हो जाएगा. आपको किसी की हेल्प चाहिए, या आप कुछ नया रिक्रूट करेंगे, या कोई फंडिंग करेंगे, या अपने को और मोटिवेट करेंगे. वो जो एक्शंस हैं, वो एक्शंस आपको उस गोल को अचीव करने के लिए लिखने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं, जैसे हमारी कंपनी का पर्सनल गोल है टू इम्पैक्ट 10,000 पीपल इन दिस ईयर बाय यूजिंग हैप्पीनेस सेमिनार्स एंड हैप्पीनेस वर्कशॉप्स एंड 1-to-1 कोचिंग, लाइफ कोचिंग. So उसके लिए what we have done is we have created a whole blueprint. एक blueprint बनाया है कि हर महीने हम क्या करेंगे, और हर महीने उसको काम करके उसको टिक करते हैं कि इस महीने हम इतनी कंपनी से कांटेक्ट करेंगे, इतने एनजीओ से करेंगे, इतने वॉलंटियर करेंगे. तो वैसे ही आपको एक एक्शन बनाना है गोल के साथ साथ कि मैं ये काम करूंगा. किसी को इस पे डाउट है तो पूछ सकता है कि एक्शन कैसे बनाना है. एक्शन इज एक्टिविटी. तीन की एक्टिविटी जो आप लिखेंगे, उस एक्टिविटी से आपका गोल अचीव करना आसान हो जाएगा. तो या इस छोटे टाइम में नहीं लिख सकते, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वर्कशॉप के बाद या संडे को उस पर बैठ के टीम मेंबर के साथ डिस्कस करके 3 या 4 एक्शन और टाइमलाइन डिसाइड करें कि ये मैं करूंगा अपने गोल को अचीव करने के लिए, और एक कमिटमेंट करें कि ये गोल हर हालत में अचीव करेंगे, क्योंकि इससे जो आपको खुशी मिलेगी वो किसी और चीज से नहीं मिल सकती है. क्लियर है? इफ इट्स क्लियर जस्ट से दिस. Yeah, clear? Everybody put a thumb, or in the chat box. It's very clear. Keep writing in chat box, whatever you're learning. अब next क्या होता है? आप बोलेंगे कि ये तो कई बार हुआ है, हमने गोल भी डिसाइड किया, एक्शन भी डिसाइड किए, पर हुए नहीं. पिछले साल भी किया था, इस साल भी किया है, नहीं हुआ. तो ये क्वेश्चन आना लाजमी है. दिस इज वेरी वेरी पॉसिबल. तो उसके लिए क्या होता है कि हमारे अंदर फियर्स आ जाते हैं, डर आ जाता है, और वो डर आ जाता है जब हम पास्ट में अनसक्सेसफुल होते हैं. जब लास्ट ईयर हमने टारगेट अचीव नहीं किया, उससे पहले नहीं किया, तो उसका एक डर बैठ जाता है. तो उसके कारण क्या होता है कि हमारे फियर्स आ जाते हैं, और ये हमारे फियर्स जो हैं ये हमको रोकते हैं आगे बढ़ने से. अब मैं आपको बताता हूँ 7 टाइप्स के फियर होते हैं जिससे हमारी हैप्पीनेस रुकती है. सबसे पहला फियर होता है सोशल मास का, कि लोग क्या सोचेंगे. लोगों के चक्कर में हम आगे बढ़ नहीं पाते
कि मैंने ये किया नहीं किया तो लोग क्या सोचेंगे, या तो ये हमें फियर को हटाना है कि लोग क्या सोचेंगे। लोग कोई नहीं है, हम ही लोग हैं, आप ही सब कुछ हो। ओके, सो वी हैव टू थिंक ओनली अबाउट आवर गोल। Yeah, very good, Ravish. You have clearly identified the 3 action. Very good. In chat box, very good. So first we have to remove the fear. First fear is the what others will think. We should not worry about what others will think. आप अपने नेचुरल जैसे हैं वैसे ही रहिए, उसी में आप बेस्ट हैं, क्योंकि आपको भगवान ने एक पर्पस के लिए बनाया है। दूसरा जो होता है वो होता है फियर ऑफ फेलियर, कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, मेरी फैमिली वाले क्या कहेंगे, मेरे मैनेजर्स क्या कहेंगे, या मेरे ओनर्स क्या कहेंगे। तो आपको इसके बारे में नहीं सोचना है, आप काम कर रहे हैं, वही सबसे बड़ी चीज है। थॉमस एडिसन ने कहा 1000 टाइम्स फेल हुआ था, तो जब बल्ब बना रहा था तो उसने कहा था मैं 1000 ऑफ फेल नहीं हुआ, 1000 टाइम मैंने सीखा है, 1000 टाइम मैंने नई चीज सीखी है, मैं फेल नहीं हुआ हूं। तो कोई फेलियर नहीं होता है, तो हमें फेलियर के डर को हटा देना है, तो हमारी खुशी बढ़ती जाएगी। और फियर ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन एक तीसरा फियर होता है कि लोग मेरे को रिजेक्ट कर देंगे। मैंने एनजीओ मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ तो मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा, या मैं लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुआ तो रिजेक्ट हो जाऊंगा, उसको भी हटा देना है। ये सब आपस में लिंक्ड है, इससे हमारी खुशी रुक जाती है। चौथा फियर होता है नॉट बीइंग गुड इनफ, कि मैं परफेक्ट नहीं हूं। और परफेक्ट के चक्कर में मैं आपको बताऊंगा, मैनी पीपुल रीच टू ग्रेव यार्ड, कि वो परफेक्ट नहीं है, वो कुछ काम नहीं करते, वो अपने आइडियाज को दिमाग में लेके दुनिया से ही चले जाते हैं। तो अब तो परफेक्ट होने की जगह अच्छा है कि आपको जितना आता है उसमें काम करिए। 70% परफेक्शन इज बेटर देन 100% परफेक्शन। 70% आप परफेक्ट हैं तो आप अपना काम चालू करिए, डोंट वरी अबाउट 100%। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और चौथा है कि नॉट हैविंग इनफ, हमारे पास रिसोर्सेज कम है, फंडिंग कम मिल रही है, कोविड आ गया है, तो इन सब से भी हमें डरना नहीं है। हम जितने रिसोर्सेज है उसमें हम जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, दैट इज द की फॉर हैप्पीनेस। और अपना एफर्ट करते रहें नई तरीके से ढूंढने के लिए। लास्ट होता है कि मैं अपनी एनजीओ को पूरा कंट्रोल करूं और मैं उसके हर डिसीजन में लूं। जितना आप अपने डिसीजन अपने पास रखेंगे उतना आप काम को रोकेंगे, जितना आप दूसरे अपने टीम मेंबर को कैपेबल बनाएंगे उतना ही काम मल्टीप्लाई होगा। तो हमें ये नहीं रखना कि सारा कंट्रोल खुद रखना है, धीरे धीरे दूसरों को देना है ताकि वो भी काम करें और काम ज्यादा हो। और एक और जो फियर है, जो बड़ा अजीब फियर है, वो है कि मैं ज्यादा सक्सेसफुल हो गया, मैं यदि नेल्सन मंडेला जैसा बन गया तो मैं उसको कैसे संभालूंगा, मैं इंटरव्यू कैसे दूंगा टीवी में, मैं बीबीसी में इंटरव्यू के लिए कैसे जाऊंगा। तो सक्सेस का फियर भी होता है, तो आपको उससे नहीं डरना है। आप ये तैयार करिए कि मुझे मदर टेरेसा, नेल्सन मंडेला और बड़े लोगों की तरह बनना है, और उसके बाद जो भी पब्लिसिटी आएगी मैं हैंडल कर सकता हूँ। वी डोंट हैव टू फियर अबाउट दैट। और लास्ट फियर जो अभी सबसे बड़ा है वो कोविड का है, कि मैं बीमार हो गया तो क्या होगा। तो वो लेजिटिमेट फियर है, तो हमें उसकी प्रिकॉशन लेनी है। कई लोग कहते हैं मुझे मेंटल वो हो गया, कभी हार्ट प्रॉब्लम हो गई, तो हम जितना अपने फियर्स को थॉट में लाएंगे उतना ही वो हमें घेरेगा। मैंने बताया दीपक चोपड़ा की जो स्टडी हुई है, उस स्टडी के हिसाब से ये क्लियर है कि आप जितना भी इलनेस को फियर करेंगे उतना ही इलनेस आपको कैच करेगी। या प्रोफेसर, यू वांट टू से समथिंग? You have raised the hand. Nothing, sir. Can continue, sir, please. Okay, okay. So just I am problem. here, so just show the hand raise. Very good, very But, good. video has switched off. That's why I am You are liking the it. hand now. raise. Okay. So Continue, sir, please. Yeah. So these are the 7 fears. ये 7 डर हैं। इन 7 डर को हमें निकालना है। पहला डर हमें निकालना है कि लोग क्या सोचेंगे। Okay. दूसरा हमें निकालना है कि फेलियर का डर नहीं होना। तीसरा है रिजेक्शन का। चौथा है कि गुड इनफ, आप परफेक्शन कभी नहीं मिलता, कुछ भी चीज परफेक्ट नहीं होता। आप आज बुक लिखेंगे वो परफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि वो बुक अगले 1 साल बाद आप लिखेंगे तो और बेटर होती, पर आपने आज लिख के पब्लिश करी वो इंपॉर्टेंट है। आपने आज एनजीओ में 10% काम किया वो इंपॉर्टेंट है, इससे कि आप 1 साल बाद 100% काम करेंगे। और आपको इलनेस और बीमारी का फियर बिल्कुल नहीं रखना है, प्रिकॉशन लेनी है, पर ये नहीं सोचना है कि मैं बीमार हो जाऊंगा, क्योंकि उससे बीमारी अट्रैक्ट होती है। और फियर्स के कितने साइड इफेक्ट है मैं आपको बता रहा हूं। ये एक स्टडी हुई है यूएस में,
उन्होंने बोला है कि फियर से एक तो आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। यदि आप डरे हुए हैं तो आपके डिसीजन कभी सही नहीं हो सकता। आप प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते यदि आप डरे हुए हैं। आप कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल नहीं कर सकते। आप दूसरों को सुन नहीं सकते यदि आप डरे हुए हैं। आप दूसरों से ढंग से बात नहीं कर सकते। यू कांट स्पीक टू अदर्स इफ यू आर अफ्रेड। You cannot be social if you are afraid, and you cannot use energy and time if you are afraid. This is the impact of fear. तो अभी हम what we will do a 5 से 10 मिनट का एक मेडिटेशन करेंगे, जिससे हम ये ट्राई करेंगे अपने फियर्स को रिमूव करने का। तो आप सब लोग कोऑपरेट करिएगा, और जो लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन करें। तो हम एक मेडिटेशन करके अपने फियर्स को दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? और इसको आज नहीं, आपको कंटिन्यू करना है फिर। या एवरीबडी इज रेडी विद मी? प्लीज रेज योर हैंड। या एवरीबडी इज रेडी? ओके, सो लेट अस क्लोज अवर आईज। अपनी आंखों को थोड़ा बंद कर लीजिए। जो नहीं कर सकते हैं वो आधी खोल सकते हैं, और जितना हो सके आप वीडियो ऑन करें तो बेटर रहेगा। और अपने पैरों को जमीन पे, अर्थ पे बिल्कुल सॉलिडली लगा लीजिए। पुट योर फीट स्ट्रांगली ऑन द अर्थ। ऐसे लगे कि आपको पूरी अर्थ का सपोर्ट मिल रहा है। और उसके बाद अपनी बैक को आप चेयर से टच कर लीजिए, ताकि आपको टच लगे चेयर से। अब आप अपने पूरे फीट्स को आप एज्यूम करिए पूरा रिलैक्स हो रहे हैं। फीट्स, आपके पैर रिलैक्स हो रहे हैं, आपके नीज रिलैक्स हो रहे हैं, बिल्कुल रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं है। अपने थाइस को रिलैक्स करिए। अपने स्टमक एरिया को रिलैक्स करिए, जहां से सारा डाइजेशन होता है, जहां से सारी एनर्जी आती है, उसे रिलैक्स करिए। अपने हार्ट एरिया को रिलैक्स करिए, जहां से सारी इमोशंस आती हैं। बिल्कुल रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं। अपने थ्रोट एरिया को रिलैक्स करिए, जहां से वॉइस आती है, जिससे आप सब लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, उसको रिलैक्स करिए। जब मैं बोलता हूँ रिलैक्स करिए, तो आप एज्यूम करिए वो पूरा रिलैक्स हो रहा है, वहां की सारी नर्व्स रिलैक्स करें। अपने फेस को रिलैक्स करिए। फेस में 10,000 से ज्यादा मसल्स होती हैं। जस्ट रिलैक्स इट फुल्ली। अपने शोल्डर्स को रिलैक्स करिए। यू कैन मूव आल्सो शोल्डर लिटिल बिट। अब अपने हेड को रिलैक्स करिए, जहाँ पे 60,000 थॉट्स रोज आते हैं। बिल्कुल शांत दिमाग है। जो भी टेंशन है उन्हें भूल जाइए। जो भी थॉट्स आने दीजिए। पर्सनल, प्रोफेशनल, एनजीओ, जो भी थॉट्स आ रहे हैं, कोविड, जो भी आ रहे हैं आने दीजिए। उनको रोकिए मत, वो आपके पार्ट हैं। अब आप एज्यूम करिए आप एक बहुत शांत समुद्र के किनारे बैठे हैं। बिल्कुल शांत नीले पानी वाला ब्यूटीफुल ओशन इज देयर। और उस समुद्र में, उस ओशन में लहरें आ रही हैं। जिस तरह ओशन की लहरें हैं, वैसे ही हमारे ये थॉट्स हैं। ये आते रहते हैं। इनसे हमें गवर्न नहीं होना चाहिए, इनको पॉजिटिव रखना चाहिए। जैसे समुद्र चिंता नहीं करता कैसे लहरें आ रही हैं, वो अपना बड़ा जगह बनाए रहता है, बनाए रहता है, उसी तरह हम बहुत बड़े हैं इन थॉट्स से। तो ये भी थॉट्स जो आ रहे हैं, ये जो डर आ रहे हैं, ये जो
फंडिंग के इश्यूज आ रहे हैं, ये और कोई इश्यूज आ रहे हैं, मैनेजमेंट के इश्यूज आ रहे हैं, पर्सनल लाइफ के इश्यूज आ रहे हैं, ये वेव्स हैं, ये लहर्स हैं, ये आती रहेंगी, ये तो जिंदगी भर आती रहेंगी, पर इससे हम समुद्र से कम नहीं हो जाते हैं। जैसे समुद्र में पानी है, वैसे ही हमारे अंदर भी 70% पानी है, 70% वाटर है, 70% वाटर है। तो हम ओशन जितने ही बड़े हैं, और हमें इन छोटे छोटे थॉट से, छोटे छोटे डर से घबराना नहीं है। ये हमारा पार्ट है, ये जिंदगी भर आते रहेंगे। जैसे एक लक्ष्य है समुद्र का, इतनी वास्टनेस है, वैसे ही हमें अपने लक्ष्य को बना के रखना है। मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं समुद्र जितना पावरफुल हूं। ये सारे थॉट्स वेव्स की तरह हैं, ये आते रहते हैं और मैं इनसे प्रभावित नहीं होता हूं, मैं इससे इम्पैक्ट नहीं होता हूं। मेरा गोल क्लियर है जो मैंने अभी डिसाइड किया है 1 साल का, और उस गोल को अचीव करने के लिए मैं एक्शन लिख रहा हूं या एक्शन लिखूंगा या लिखूंगी। और जब मेरा गोल क्लियर है, मेरे थॉट्स पॉजिटिव हैं, मेरी एनर्जी पॉजिटिव है, तो कोई मुझे ओशन बनने से रोक नहीं सकता, कोई मुझे हाईली सक्सेसफुल होने से रोक नहीं सकता, कोई मुझे हैप्पी होने से रोक नहीं सकता। मेरी हैप्पीनेस मेरे हाथ में है, मेरे थॉट्स मेरे हाथ में है। ये एक वेव्स की तरह हैं जो आते हैं और मैं उनको गवर्न करता हूँ, वो मुझे गवर्न नहीं करते हैं। मैं उनको कंट्रोल करता हूँ, वो मुझे कंट्रोल नहीं करते हैं। ये मेरे हाथ में है, मैं किस मोमेंट में अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में चेंज कर लूं और उससे अपने गोल्स को अचीव करूं, पर्सनल और प्रोफेशनल। जिस तरह सूरज, जिस तरह नदियां, जिस तरह ओशन अपना काम कर रहे हैं बिना किसी इम्पैक्ट के, वैसे ही मैं एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके समाज की सेवा कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और ये छोटे छोटे थॉट्स, ये डर मुझे इम्पैक्ट नहीं कर सकते। मैं इन सबसे बहुत बड़ा हूँ और मेरी हैप्पीनेस मेरे हाथ में है। मुझे धरती का पूरा सपोर्ट है, मुझे आकाश का पूरा सपोर्ट है। इन दो के सपोर्ट होते हुए कौन मुझे रोक सकता है? आई एम पावरफुल, आई एम वेरी पावरफुल। अब जब कंफर्टेबल हो, आप अपनी आईज को खोल सकते हैं, और इस मेडिटेशन को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप दिन में भी 15 मिनट रोज जरूर करिए, ताकि आपका गोल ओरिएंटेशन हो। यदि आप आंखें खोल लें, अपनी पाम्स को ऐसे कर लें और चीक्स पे लगा लें। एक लंबी गहरी सांस लेके वापस आ जाएं हमारे स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर कोऑपरेशन और डूइंग द एक्टिविटी। तो इसका पर्पस ये है कि हमारे फियर्स हमारे हाथ में है। जो 7 फियर्स हैं, इसके कारण बड़े बड़े शक्तिशाली लोगों अपना कंट्रीब्यूशन देश में नहीं दे पाए हैं। तो वो बड़े दुख की बात है कि लोग डर के कारण अपना कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाते, वो एक कली बन के रह जाते हैं, वो फ्लावर नहीं बन पाते। हम सबको फ्लावर बनना है और ब्लॉसम करना है वर्ल्ड को, तो हमें अपने फियर्स को हैंडल करना है। अब जो लास्ट एस्पेक्ट मैं कहना चाहूंगा, वो कहना चाहूंगा आपकी एनर्जी मैनेज करने के लिए। हम लोग जो है अपनी लैपटॉप की बैटरी के लिए बड़ा चिंतित रहते हैं, हम अपनी मोबाइल की बैटरी के लिए बड़ा चिंतित रहते हैं कि माय मोबाइल बैटरी, माय लैपटॉप बैटरी, बट व्हाट अबाउट आवर ओन बैटरी? हमारी बैटरी के बारे में हम क्यों नहीं सोचते कि किशोर की बैटरी, तन्मय की बैटरी, प्रवीण की बैटरी, पूर्णिमा की बैटरी, मटिल्डा की बैटरी, वो एग्जॉस्ट नहीं होनी चाहिए। मोबाइल की बैटरी भले ही एग्जॉस्ट हो जाए, या तो इसके लिए हमें अपनी एनर्जी को मैनेज करना है। जो आज की सेशन का लास्ट पार्ट है, उसमें पहले चीज होगी कि हमें ऐसे लोगों के साथ रहना है जो उनको
एक्सपेंड करते हैं, जो हमें जॉयफुल बनाते हैं। तो एनर्जी हमारी दो तरीके से मैनेज होती है, एक होती है एक्सपेंशन, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन होता है जब हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं, अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बना के रख सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन होता है जब हम एंग्री, गुस्से वाले और सेल्फिश लोगों के साथ रहते हैं। तो हमें ये देखना है कि हमारा एनवायरनमेंट कैसे है। हम किसी को इग्नोर नहीं कर सकते, पर हम अपने टाइम को उनके साथ रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और हमें ऐसी सिचुएशन बनानी है अपनी एनजीओ में, अपनी फैमिली में, अपने घर में, जहाँ पे हमको जॉयफुल और पॉजिटिविटी मिले और हम दूसरों को दें और हम निगेटिविटी से दूर रहें। उससे हमारी एनर्जी, हमारी बैटरी चार्ज रहेगी और रात को भी आप जब सोएंगे तो आप एग्जॉस्ट होकर नहीं सोएंगे, आप फुल एनर्जी के साथ सोएंगे। तो क्या करना चाहिए? आप किसी को इग्नोर तो कर नहीं सकते, तो आपको ये करना है कि जो लोगों को आप पसंद करते हैं और जो आपको भी पसंद करते हैं, उनके साथ आप ज्यादा टाइम स्पेंड करिए, एंजॉय करिए। ये वाला है, पीपल यू लाइक यू, एंजॉय विद देम। दूसरी सिचुएशन है यू लाइक बट दे डोंट लाइक यू, तो आप उनको सिर्फ एक्सेप्ट कीजिए, डोंट स्पेंड टू मच टाइम। बट तीसरी सिचुएशन होती है पीपल डोंट लाइक यू एंड यू आल्सो डोंट लाइक देम, तो उनके साथ आप कंपैशन रखिए और एनीवे ज्यादा बात होगी नहीं, दैट इज ओके। एंड लास्ट है पीपल लाइक यू बट यू डोंट लाइक देम, तो उनको रिस्पेक्ट करिए कि उनके काम को बनते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम कभी भी एनर्जी को ड्रॉ नहीं करेंगे, एनर्जी को विथड्रॉ नहीं करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। ज्यादा से ज्यादा टाइम लगाइए जहां पे आप एंजॉय करते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, आप पसंद करते हैं, और जिनको आप रिस्पेक्ट करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं। तो इससे क्या होगा, एक प्रॉपर एनर्जी मैनेजमेंट रहेगा, जो बहुत जरूरी है अपने को खुश रखने के लिए। तो 4 एस्पेक्ट हुए। पहला एस्पेक्ट है थॉट प्रोसेस, मैं रिपीट कर रहा हूं। सेकंड एस्पेक्ट है आपका गोल क्लैरिटी, मीनिंग ऑफ लाइफ। थर्ड है आपका एनर्जी मैनेजमेंट, एंड जो फोर्थ है आपका फियरफुल नहीं रहना, बिल्कुल फियरलेस रहना। जब आप ये 4 चीजें करते हैं तो खुशी के आप कैटलिस्ट बन जाते हैं। तो हमें क्या बनना है? हमें बनना है वॉरियर, नॉट द वरियर। एक होते हैं वरियर जो दिन भर सोचते रहते हैं क्या करना है, एक होते हैं जो काम करते हैं और खुश रहते हैं और खुशी को बांटते हैं। तो हमारा जो रोल है वह है वॉरियर का। ये कोट जो है ये है कि 10% ऑफ लाइफ इज मेड ऑफ व्हाट हैपेंस टू यू, 90% ऑफ लाइफ इज डिसाइडेड हाउ यू रिएक्ट। 10% लाइफ ये होता है जो आपके साथ होता है, 90% इससे होता है कि आप उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं। उस सिचुएशन में आप जैसे रिएक्ट करेंगे उसी से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो हमें 10% का वरी नहीं करना है, कुछ ना कुछ होता रहेगा, कभी कोरोना होगा, कभी कुछ और होगा, कभी कुछ और होगा, वो 10% है। 90% हमारे ऊपर है, हमारी विल पावर पे है, हम उसको कैसे रिएक्ट करते हैं। तो जब हम 90% की सोचेंगे तो 10% विल बी टेकन केयर ऑफ। और लास्ट है कि हम देने वाले लोग हैं, एनजीओज में काम कर रहे हैं, तो हमें सूरज और पानी से सीखना है कि जो सन एंड वाटर है वो सबको देता है बिना कुछ मांगे, और उसको देने के बाद भी उसकी ईगो नहीं रहती, हमेशा ग्राउंडेड रहता है। आप देखेंगे सारी नदियां जमीन से नीचे बहती हैं, पर उनमें इतनी पावर है कि वो पत्थर को भी तोड़ सकती हैं, पर उसके बाद भी वो ग्राउंडेड रहती हैं। तो अपना बड़ा काम करते हुए भी हमें ग्रेटिट्यूड के साथ ग्राउंडेड रहना है, हमें डिसिप्लिन रखना है और फोकस्ड रहना है। हमें कंपैशन करना है पर किसी से अटैचमेंट नहीं करना है। तो जब हम देखेंगे कि जो नदियां और सन है किस तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं बिना कुछ लिए हमसे, और जब ऑक्सीजन के लिए अभी कितनी महामारी हुई है, ये प्लेंटी में हमें फ्री में मिलती रही है लाइफ के लिए, हमें उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना है। तो इसीलिए हम अपने बड़ा काम करना है, पर उसके लिए हमें ग्राउंडेड रहना है, तभी हम और ज्यादा बड़ा काम कर सकते हैं। तो विद दिस आई विल लाइक टू एंड द सेशन। एंड ये जो कोट है कि यू विल नॉट बी रिमेम्बर्ड फॉर हाउ मच यू मेड बट हाउ मच यू गिव, एंड दैट इज व्हाट आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ऐसे लोगों के साथ आज काम करने का मौका मिला जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। तो अब किसी के लिए कोई क्वेश्चंस हो या कुछ पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई चैलेंज आ रहा हो, कुछ आपको लग रहा हो कि कुछ और एडिशनल पॉइंट है, यू कैन आस्क। So if you are not saying, I will ask in chat box, what is your one of the biggest learning from the today session? Can you put in chat box? आज की सबसे बड़ी लर्निंग क्या है? और आप यदि कोई बोलना चाहें तो बोलें,
जिससे आप अपने फ्यूचर में 1 साल के लिए आपको कुछ सीखने को मिला। प्लीज शेयर योर लर्निंग एंड फॉर एवरीबॉडीज बेनिफिट, क्योंकि आपकी लर्निंग हो सकता है दूसरों को भी। हेलो। यस मारुति। हाँ सर जी, आज का सेशन बहुत ही अच्छा हुआ है। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा मौका हमें बार बार मिलना चाहिए और हम आपके साथ में कुछ हमारी जो आइडियाज है वो आइडिया और अच्छी तरह से पेश हो जाए लोगों की तरफ। और हमने जो प्लान किया है वो प्लान हम हमारे ऑफिस में किया और हमारे टीम के साथ भी बातचीत करेंगे। और अगले 1 साल में हम हमारी रूरल एरियाज में जो हमारे तुलजापुर तालुका में ब्लॉक में 108 ग्राम पंचायतीज है, लेकिन उसमें से हम 50 ग्राम पंचायत के जहाँ पे महिला सरपंच बनी है, उन महिलाओं को सशक्तिकरण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि महिला पढ़ी लिखी चुन के नहीं आती है। जो चुन इलेक्शन में जीत जाती है वो तो कम पढ़े लिखे लोगों को संधि मिलती है और उनको पंचायत का कारोबार ठीक तरह से समझना बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसा हो गया तो फिर गांव का विकास होने में कुछ मदद हो जाएगी। थैंक यू मारुति, थैंक यू फॉर आपने सीखा और इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच इसके शेयरिंग। थैंक यू तन्मय, आपने भी अच्छा लिखा। एंड वीरेंद्रा या सन नेचर, पूर्णिमा, या everybody can share and very good. Tanmay also, stay positive irrespective of the situation. Yes, positive thoughts are very important. Yes, happiness linked with goal achievement. Yes. तो ये जो तो मैं लास्ट में ये बोलना चाहूंगा कि जैसे मैं एक छोटे बच्चे का एग्जांपल लेता हूँ। लोग कहते हैं आप खुश क्यों नहीं है, खुश नहीं है। आप छोटे बच्चे को ज्यादा चॉकलेट देंगे तो वो खुश तो हो जाएगा, पर वो उस खुश से उसकी तबीयत भी खराब हो सकती है, उसके दांत भी खराब हो सकते हैं। इसलिए जो खुशी है वो तभी मिलती है जब हम थॉट्स को पॉजिटिव रखते हैं, गोल्स को अचीव करते हैं, बिना के काम करते हैं और अपनी एनर्जी को करते हैं। तो ये जो 4 चीजें हैं इस पे हमें ध्यान रखना है। With this, I will hand over to Sultana and Matilda for closing remarks. Yeah, coach, thank you. On behalf of everyone here today, thank you for taking this time to speak a very important topic that affects us all of you. Thank you very much, coach, for a wonderful session. Yeah. Thank you, everyone. So I am sharing my number in case somebody wants to, have some more insight. They can send me a WhatsApp message, and I will try to, help them out. If I can help in some way in bringing goal clarity, positivity in their thought process. Anytime you feel negative, you can send me a WhatsApp message. I will be happy to allocate some time to you wonderful people. Thanks everyone for joining. Thank you, coach, for taking our time. Thank you, Sultana. Do this session for us. It was really insightful. So if there are no more questions, we can wind up the session. I think there are no more questions. So thank you so much. Thank you. Thank you, everyone. Yeah, will the PPT be available for us? No, PPT will not be available, but some key points I will share with Sultana, which she can share forward to you all. हाँ सर जी। Thank you. Yeah. हेलो। Thank you. Thank you. Thanks everyone. हाँ, अपनी जितने लोग आज मीटिंग में मौजूद है ना, इनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहिए। Okay. या सबका नंबर तो हमें मिलना चाहिए। Yeah. Sultana, Matilda, it is a good idea if you can create a WhatsApp group and we can keep sharing on happiness if it allows in your policy. जितने लोग इनका सबका नंबर एक दूसरे को मिल जाएगा और व्हाट्सएप भी हो जाएगा और सबको मैसेज देना आसान हो जाएगा। Sure, sir, we'll do that. Okay, Matilda, we have everybody's contact number, right? Yeah, we are having. Yeah. So you can Thank me you. also there. Yeah. Thank you. सर जी का नंबर मुझे चाहिए था, मिल जाएगा? Sorry? हाँ, मैंने चैट में लिखा है। जी सर। चैट में लिखा है मैंने नंबर अपना 9810205700। ओके सर।
Okay, sir. Thank you. Okay, thank you so much. Thank you so much, sir. All the best, sir. Kapoor, sir, thank you. Thank you very much. Thank you. Namaskar. Okay, bye, sir. All the best. Happiness catalyst. You are all happiness catalyst now. Bye.